Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today in this video tutorial we are going to talk about the second part of cell cycle and cell division जिसका नाम है mitosis that is mitotic phase. In the previous video हमने देखा वहां पर G1, S and G2 phase means they were simply included under the interphase and they were simply preparatory phase. And in the S cycle there was the formation of DNA, that's DNA synthesis and protein enzymes that were synthesized in G1 and G2 phase respectively and DNA in S phase. देन हमने बात की थी हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, सेल साइकिल में पढ़ेंगे, दैट्स माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज के बारे में मैंने वहां पर कुछ पॉइंट बताए. अगर हम आगे चलें तो हम देखें माइटोटिक फेज जैसे मैंने वहां पर कहा था कब होता है, इज द स्टेज व्हेन सेल डिवाइड्स, दैट्स फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज दैट इज mitosis, the division of single nucleus into two genetically identical daughter nuclei. This is the mitosis. One nuclei, it divides into two along with the chromosomes. Is it? And in mitosis also हम देखेंगे also the cytoplasm division takes place in the mitosis. Then mitosis हमने देखा था it takes place in two phases, that's in two processes. First मैंने वहां पर आपको बताया भी था that's division of nucleus, that's chirokinesis. Chiro means synthesis of nucleus, that's division of nucleus, and separation of the cytoplasm and the new nuclei into daughter nuclei, that's the second division जिसको हम बोलते हैं cytokinesis. ठीक है ना. अब अगर हम बात करें कायरोकाइनेसिस की, this mitotic phase is of two types. The first mitotic phase contains four stages, that's karyokinasis. Karyokinasis takes place in four stages: prophase, metaphase, anaphase, telophase, that is PMAT, prophase, metaphase, anaphase and telophase. And here is the second phase, that is cytokinesis, means synthesis of or divisions of cytoplasm. And in these steps हम देखेंगे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज respectively. So let's begin here with the early prophase. The early prophase, firstly it follows the S and G2 phase of interphase. As we have seen the interphase, यहाँ पर कुछ था interphase में, that is G1, then we have S, then G2, then M phase. So this was cycle. So this was whole interphase. So it follows this S and G2 phase. After that this mitosis phase will takes place. The second point here I will tell you that chromatids condense becoming chromosomes. क्या होता है यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स बनती हैं एस फेज में वो क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, बिकमिंग क्रोमोसोम्स, दैट्स दे गिव राइज टू द कंप्लीट शेप ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है ना. ऐसे मैंने बताया था ये कुछ एक पार्ट था, फिर इसमें क्रोमेटिड दैट सिस्टर क्रोमेटिड, इसमें क्रोमेटिन की सिंथेसिस हुई थी, देन इसके बाद इसकी और एक क्रोमेटिड बन गई थी. देन इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर. Important characteristic of this early prophase is that is nucleolus disappear here. Is it? You know nucleolus क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा सेंटर वाला कुछ पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जिसमें आरएनए की सिंथेसिस होती है. Then centrioles separate and start moving to opposite ends of the cell. Here what happens, these centrioles ये क्या होती है, पहले एक ही जगह होती है सेल में, ऐसे अगर न्यूक्लियस है तो ऐसे, they start separating means they start now moving to opposite poles. One will reach here and one will reach here, like you can see here, one is here, that is centriole, and another is here and it's moving towards this pole, one pole and second pole, opposite ends of the cell. Spindle began to form.
spindle fibers began to form. What are spindle fibers? You can clearly see these are spindle fibers, or we can also call them microtubules. Their function is to pull the chromatids of chromosomes. जब chromosome इनको ये क्या करेंगी, chromosome को खींचेगी, ठीक है ना. This is the early prophase. Now here is late phase. So what's going to happen in late phase? That's nuclear membrane fragments and the microtubule invade the nuclear area. That's the first point. Means the न्यूक्लियस के पास जो कवरिंग होती है अपनी, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल फ्रेगमेंट हियर, दैट्स इट विल डिग्रेड नाउ. ये खत्म हो जाएगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देन द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वेड द न्यूक्लियर एरिया. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ए से बनी थी, दैट इज सेंट्रियोल से निकली थी. दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स नाउ इन्वेड द होल एरिया of the nucleus. Is it? The second point is that is centriole have to move to opposite poles. ये centriole जो है ये complete हो जाते हैं late prophase में पहुंच के किधर, opposite poles तक. Its first pole and its second pole. You can clearly see that now both the centrioles are at opposite poles. The spindle is completely formed, and these spindle fibers, the function of spindle fibers is to pull the chromosomes, as I earlier told you. So they are completely formed here in the late prophase, and you can clearly see this is one centriole and this is another centriole. These are the microtubules and give rise to complete spindles, and this is the chromatid. Is it? Also, I would like to tell you that this prophase is also इसमें क्या होता है, जैसे सेल मटेरियल्स लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स एटसेट्रा, जो भी हमारे सेल में मटेरियल होता है, दैट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल विल डिसअपीयर. ठीक है ना. दिस इज द आल्सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लेट प्रोफेज. दीज ऑल विल डिसअपीयर. So also I would like to tell you that's one important characteristic of this prophase, that is इस prophase में क्या होता है, astral formation takes place. Astrals are formed. These are astrals. You can simply see here. That's this outgrowing is. These are astrals. But this astral formation takes place only in case of animals. And plants में ये absent होते हैं, ठीक है ना. And these astrals are absent in plants. Why they are absent in plants? Because there is no centriole in the plants में centriole नहीं होता है. Now this mitosis is on the basis of this astral formation. Mitosis is of two types. The first is anastral and another is astral mitosis. Astral and anastral mitosis. So what is first astral mitosis? Like in higher plants, centriole are absent, so no asters are formed there. So mitosis without asters are known as astral mitosis, and anastral mitosis. And the astral mitosis on the other hand is firstly takes place in animals. Second, where the asters are present, यहाँ पर एस्टर प्रेजेंट होते हैं, एंड माइटोसिस यहाँ क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स, दैट्स इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर्स यहाँ पर माइटोसिस होती है. सो दिस इज नोन एज एस्ट्रल माइटोसिस. फिर सिंपली अगर हम कहें, अब प्रोफेज में हमने क्या देखा, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस इनटू कंप्लीट क्रोमोसोम्स, अनदर सेल मटेरियल्स दैट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, ठीक है ना. और क्या होगा, सेंट्रोमियर जो मैंने कहा, द सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन start disappearing or degrading, and microtubule form a complete spindle. So let's start here the metaphase. Metaphase firstly starts with complete disintegration of the nuclear envelope. As I told you earlier, in the prophase, there starts the disintegration of that's degrading of the nuclear membrane. Now here the complete disintegration takes place, the first point. The second point is chromosomes are separated through the cytoplasm of the cell.
कॉमन है जब न्यूक्लियर एनवेलप ही जिसने इन क्रोमोसोम्स को कन्फाइंड रखा था एट द सेम प्लेस इन द न्यूक्लियस. नाउ व्हेन दिस एनवेलप इज डिग्रेडेड इट मीन्स नाउ these chromosomes are scattered all over the nucleus now, sorry, in the cytoplasm now. The chromosomes are aligned at the metaphase plate. The chromosomes are now aligned at the metaphase plate. How they are aligned at the metaphase plate? Due to these, that is, spindle fibers are my. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, द फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज टू पुल दी सिस्टर क्रोमेटिड्स. नाउ क्या है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स? क्या है? ईच सिस्टर क्रोमेटिड इज कनेक्टेड विद दिस स्पिंडल फाइबर्स एट द प्लेस ऑफ सेंट्रियोल. ठीक है ना, सेंट्रियोल, सॉरी, सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर में ये क्या होगा, ये अटैच होंगे इसके साथ, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स किसके साथ? स्पिंडल फाइबर्स के साथ. अब ये स्पिंडल फाइबर्स जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये न्यूक्लियस था, इसमें क्रोमोसोम्स ऐसे थे, ठीक है ना, ऐसे थे, थोड़े इरेगुलर इधर उधर. नाउ ये क्या करेगा इस फेज में? द क्रोमोसोम्स आर अलाइन्ड एट द मेटाफेज प्लेट, मींस हियर द मेटाफेज प्लेट इज फॉर्म्ड. ये देखो आप, अगर यू कैन क्लियरली सी हियर दैट दीज क्रोमोसोम्स आर नाउ अलाइन्ड एट द metaphase plate, means at the equatorial line they are aligned here. So with the help of spindle fibers, these spindle fibers pull these sister chromatids at the metaphase plate. अब इनको ये पुल क्यों करती हैं? क्योंकि ये क्रोमोसोम्स जो है अब ये दूसरे फेज में कुछ यहाँ से पहुंच जाएंगे इधर, फिर सेल में कुछ कंस्ट्रक्शन से आ जाएगी ऐसे ऐसे, फिर हमें एक सेल ऐसे मिलेगी और दूसरी सेल ऐसे मिलेगी. ठीक ना, यही कुछ तो हमें पढ़ना है. Also, centrioles move at polar ends and project spindle fibers to connect each chromosome. Centriole move at polar ends. ये centriole जो हैं ये polar ends पे चले जाते हैं. ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखो ये polar ends पे आ गए and project spindle fibers. They project their spindle fibers to connect each chromosome. As I told you earlier, ये दोनों sister chromatids जो हैं क्रोमोसोम की, इनको अपने साथ पकड़ लेते हैं. Also, this metaphase is marked by completely condensed chromosome. Here we have the complete condensed chromosome, and chromosomes are clearly visible in the microscope. It means we can simply study the morphology of chromosome in this metaphase, and it's asked question in which phase we can study the morphology of chromosome easily. That's this metaphase. In metaphase, chromosomes are aligned at the metaphase plate. Firstly, they are completely visible under the microscope. Why? Because they are completely condensed. ठीक है ना, and these are these esters जो मैंने आपको कहा था, and ये animal cell होगी obviously because here is ester, and this is centriole, and this is centromere, and this is kinetochore. What's kinetochore? It's nothing but simply a protein complex. Remember, काइनेटोकोर की आपको डिफिनेशन नहीं मिलेगी ऐसे अपने टेक्स्ट पर, बट ये क्या है? इट इज अ सिंपली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या करता है मेरे बेटे? ये अगर क्रोमोसोम है, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स. दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ पर हमें क्या होता है? यहाँ पर हमें होता है सेंट्रोमियर. दिस सेंट्रोमियर के साथ होती हैं अटैच्ड दी सिस्टर क्रोमेटिड्स, and these sister chromatids are connected with the centromere due to this protein complex known as kinetochore. So simply it's nothing but a protein complex which help these sister chromatids to get attached with the centromere, is it? And this is again centriole and this is centrosome. ठीक है ना, spindle fibers, esters and centrioles form the centrosome. Now let's move towards the anaphase. This anaphase is marked by firstly the paired chromosomes that sister chromatids separate. Simply you can see here that these are sister chromatids, they are separated now. Like अगर ये chromosome ऐसे था, this were the centromere and these were the sister chromatids, एंड ये किन के साथ अटैच थी? ऐसे हर एक सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होती हैं स्पिंडल फाइबर्स, एंड ये स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड्स को पुल करती हैं, जो कि ये पहले मेटाफेज में अलाइन थे इक्वेटोरियल प्लेट पे. नाउ ये इनको अपोजिट साइड्स पे खींचती हैं, क्योंकि हमें हम क्रोमोसोम्स के पहले न्यूक्लियर डिवीजन होने करने हैं, इसके बाद हमारा क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमें दूसरी सेल मिल जाएगी. सिंपली द पेयर्ड क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट. यू कैन
कैन सिंपली सी हियर दी सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ सेपरेटेड। यहाँ पर हमें एक सिस्टर क्रोमेटिड्स है एक, वरना हमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती थी एक क्रोमोसोम में। नाउ वी हैव 2। अब ये 2 फिर जाएंगी सेम फेज में, जैसे आपको पता है G1 में, फिर S फेज में इनकी दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाएंगी यहाँ पर ए से, ठीक है ना। वो फिर रिपीट जब साइकिल होगा, ठीक है ना। The separated chromatids move to the opposite poles. You can see these sister chromatids are trying to move here, that's opposite poles, due to this pulling force. इसके पास एक pulling force होता है. This pulling force is responsible for this phenomena. And यही इन sister chromatids को opposite poles की तरफ खींचता है. Partial division of cytoplasm begins here. You can simply see, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं इस सर्कल में, यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी नजर आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पर भी मीन इस क्या है, साइटोप्लाज्म जो डिवीजन है, पार्शियल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बिगिन। साइटोप्लाज्म के भी पार्शियल डिवीजन यहाँ से स्टार्ट होने हो जाते हैं, ठीक है ना। दिस इज फीचर्स ऑफ एनाफेज। नाउ let's start with now telophase, and this is the last phase of mitosis phase, that is chirokinesis. Last phase of chirokinesis is that's this telophase. Also जो मैं प्रोफेज में आपको बोलना भूल ही गया था, that's मेटाफेज प्लेट जो था वो एनाफेज में डिग्रेड हो जाता है, ठीक है ना, टूट जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम सब अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। Important point, remember that. The first telophase is marked by firstly chromosomes are at the poles. Here you can see simply ये जो क्रोमोसोम थे ये अब पोल्स की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि हमने एनाफेज में ही देखा था ये पोल्स की तरफ खींचना शुरू हो गए थे। अब यहाँ पर ये क्रोमोसोम की तरफ पोल्स की तरह कंप्लीट जा चुके होते हैं। The second is chromosomes uncoil turn chromatids. मीन्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम अनकॉयल हो जाते हैं। फिर मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं दैट डिकंडेंसेशन टेक्स प्लेस हियर। डिकंडेंसेशन हो जाती है फिर से इन क्रोमोसोम्स की, फिर से हमें ये क्रोमोसोम मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स। न्यूक्लियर एनवेलप विच I told you in prophase and metaphase start degrading, now it reforms, is it? Spindle fibers are also disappear. You can see here is no spindle fiber, only you can see here centriole यहाँ पर है, ठीक है ना। This is telophase simply. Now of the completion of telophase हमें complete हो गई है, that's chirokinesis. We have completed the chirokinesis, that's divisions of nucleus through the prophase, metaphase, anaphase and telophase. Now हमें अब अगर ये हमारी सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कुछ हमें कुछ ऐसा साइज का मटेरियल बन गया है, मीन्स न्यूक्लियस के डिवीजन हो गए हैं। लेकिन अब हमें सेल के भी डिवीजन करने हैं, जैसे हमें ये सब कुछ ऐसे बनाना है। सपोज दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस, मीन्स हमें इस सेल को भी अब डिवाइड करना है यहाँ से, मीन्स हमें एक सेल से दूसरी सेल मिलनी चाहिए। सो यही हम पढ़ेंगे अब साइटोकाइनेसिस, दैट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. It occurs at the end of mitosis. The first point you have to remember. Another is that in animals it takes place the furrow formation. यहाँ पर क्या होती है, animals में furrow बन जाता है, separates the daughter cell. That's why हम में क्या होता है, हम में cell wall absent होता है, because at the time of cytokinesis divisions हमारे पास क्या होता है, cleavage होता है, हम में furrow like structures बन जाते हैं, ठीक है ना। एंड इन प्लांट सेल्स क्या होता है, सेल प्लेट सेपरेट्स द डॉटर सेल्स। हमें जो डॉटर सेल्स बनती थी दैट्स एनिमल्स में वो फुरो फॉर्मेशन के थ्रू सेपरेट हो जाती थी, लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स दिस सेपरेटेड बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सो क्या होता है प्लांट सेल में, सेल प्लेट थ्रू इनकी सेल का साइटोप्लाज्म के डिविजन्स होते हैं, एंड हियर यू कैन सी दैट दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज सेल प्लेट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एनिमल सेल के डिविजन्स हो गए हैं बाय फुरो फॉर्मेशन। दिस इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स एंड दिस इज प्लांट्स।
डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यहाँ पर अब ये डॉटर सेल्स जो बनेंगी, दैट इज एक सेल से दूसरी सेल क्या होगी, ये आइडेंटिकल होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये आइडेंटिकल होनी ही चाहिए। सेल्स रिटर्न टू इंटरफेज, सेल्स क्या है, अब ये फिर से वापस चले जाएंगे इंटरफेज में, फिर एस फेज में, उसमें स्टार्ट होगा G1S G2 फेज, ठीक है ना। क्या होता है और इसमें some animals, sorry, in some organisms काइरोकाइनेसिस is not followed by the cytokinesis, मीन्स जिनमें कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होती हैं, पहले काइरोकाइनेसिस होती हैं, उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती हैं, एज अ रिजल्ट विच मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसिटियम, दैट्स लिक्विड एंडोस्पर्मियम कोकोनट। क्या होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में दिस काइरोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, बट इसके बाद क्या होते हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं होती हैं, इसकी वजह से क्या हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज इन दी सेल। सो इसकी वजह से क्या हो जाती है, हमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सिंसिटियम। इसकी एग्जांपल अगर आप देखो, लिक्विड एंडोस्पर्मियम कोकोनट, कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है वो पानी सा, उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। सेल साइटोकाइनेसिस में यहाँ मैं अगर आपको और एक चीज बोलूं, इसमें ये जो हमारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दैट इज राइबोसोम्स, these will also get distributed into the newly formed cell, क्योंकि हमें अब साइटोकाइनेसिस करनी है, हमें सिर्फ डीएनए को एक सेल से दूसरी सेल में नहीं देना है, बट आल्सो जो हमारे साइटो पहले ही बने हुए हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया सेल ऑर्गेनेली बनी है, दैट्स माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्योंकि इनकी भी कॉपी बनी होगी हमें बाय द डिविजन्स, सो वो चीजें भी इस सेल में क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट, एंड दिस इज साइटोकाइनेसिस। And let's start here the last topic of the mitosis, that significance of the mitosis. Now what's the significance of mitosis? अब हम देखते हैं फायदे क्या हैं इसके। Mitosis result in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement usually। क्या होता है माइटोसिस में, हमें प्रोडक्शन सेलों की ऐसी मिलती हैं जो सेम होती हैं पेरेंट लाइक, वो मैंने पीछे भी आपको बताया था पिछले वीडियो में, आइडेंटिकल होती हैं, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल हुआ होता है वो भी कॉपी हुआ होता है, जैसे फोटो स्टेट हम करते हैं, एक कागज को दूसरे कागज में तब्दील कर देते हैं, जो एक कागज पर जेनेटिक कोई इंफॉर्मेशन होती है वही सेम फोटो स्टेट वाले पर भी होती है, सेम फिनोमेना टेक्स प्लेस हियर। The growth of multicellular organism is due to mitosis. It's also important point. A very significant contribution of mitosis is cell repair. Means sometimes जब हमारी कोई सेल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, या उसमें कोई क्रैक हो जाता है, so that will repair due to mitosis. The cell of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of the gut, blood cells are being constantly replaced. लाइक ये भी आप पढ़ोगे बायोलॉजी में, क्योंकि हमारी ब्लड सेल्स हैं, इनका लाइफ स्पान ही कुछ होता है, लाइक 120 डेज होता है आरबीसी। इसी तरह गट की सेल्स जो होती हैं हमारी, ये भी डिग्रेड होती रहती हैं, एंड इपिडर्मल सेल्स ये भी फिर जब डिग्रेड होती हैं, मीन्स हमें ये कंटिन्यूसली बनानी भी है, एंड दिस विल फॉर्म बाय दिस प्रोसेस, दैट्स माइटोसिस। Mitotic division in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium result in the continuous growth of plant throughout the life। क्योंकि आपको पता ही होगा प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो होती हैं इनडिटर्मिनेट, एंड हमारी होती हैं डिटर्मिनेट। व्हाट्स इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट? इनडिटर्मिनेट में क्या होता है, प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, लेकिन हम में पर्टिकुलर किसी फेज तक ग्रोथ होती है। सो लाइक अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो, जब आप प्लांट में पढ़ोगे ये सेल डिविजन्स वगैरह, ठीक है ना, वहां पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं इनमें डिविजन्स होने की कैपेसिटी होती है, एंड दीज विल कंटिन्यूअसली डिवाइड, एंड लेटरल कैम्बियम एपिकल ग्रोथ जो होती रहती है वो भी थ्रू माइटोसिस ही होती हैं, एंड दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। नाउ लेट्स स्टडी द नोट पॉइंट, कुछ नोट पॉइंट भी हम पढ़ लेते हैं विच इंपॉर्टेंट, दैट्स कैरोटाइप। Karyotype is a photographic arrangement of a complete set of chromosomes of a cell or organism। जब हम किसी organism के complete set of that's chromosome उसका ड्रा करते हैं, उसकी पिक्चर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं कैरोटाइप। A chromosome size is best studied at the metaphase। Also important point, मैंने आपको पहले भी बताया, मेटाफेज में हम क्रोमोसोम का साइज अच्छे से पढ़ सकते हैं, एंड शेप डिटरमाइन होती है एनाफेज में। अगर हमें क्रोमोसोम्स की शेप देखनी है, क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, ये कैसी है क्या है, वो हम देख सकते हैं एनाफेज में, ठीक है ना। दिस इज होल अबाउट द माइटोसिस एंड इंटरफेज जो हमने पिछले वीडियो में देखा।